पंडित जी को मेरा सादर प्रणाम। सौभाग्यशाली हूँ कि स्वागत का मौका मुझे आज मिला। Good evening, everyone. On behalf of Prabhakitan Foundation, I welcome you all to another session of Sur or Saj. Prabhakitan Foundation is dedicated towards creating a domain to preserve and acknowledge enormous cultural heritage of the country. Sur or Saj is our humble effort to bring to you the maestros from the field of classical music and dance through curated sessions. The sessions are like a jugalbandi between an artist and admirer. Prabhakitan Foundation is an NGO based out of Kolkata and has been committed towards empowering women through literary and cultural initiatives continually. Its initiatives are spread in over 35 cities in India and overseas. When everything had to be paused because of the pandemic, the foundation geared up its effort to ensure that patrons are not deprived of their passion for music, literature, and culture. And we have reformatted sessions to go virtual. Patrons can now tune in to the various sessions from the sanctity of their homes and interact with multifarious personalities. I would like to now take the opportunity to welcome our esteemed guest for today, Pandit Hari Prasad Chaurasia ji, who will be in conversation with Srimati Kaushiki Chakravarti. Pandit Hari Prasad Chaurasia needs no introduction as such, however, to say a few lines about him. Panditji is a classical flautist, an Indian music director who plays the bansuri. He learned music without his father's knowledge as he wanted him to become a... He learned vocal music from his neighbor Rajaram at the age of 15. Soon, he switched to playing the flute under the tutelage of Bholanath Prasad for 8 years. He joined All India Radio Cuttack in 1957 and worked as a composer and performer. While working for All India Radio, he received training from Annapurna Devi, the daughter of Baba Alauddin Khan. He also collaborated with Pandit Kumar, composed music for many movies. He has collaborated with several Western musicians and has composed music for Indian films. Panditji also played on the Beatles' 1968 B-side, The Inner Light. He has been bestowed with many awards and accolades, including the Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Sangeet Natak Academy Award, and many more. In conversation with him is another very talented and versatile songstress, Kaushiki Chakraborty ji, daughter of eminent classical Pandit Ajay Chakraborty. She received the BBC Award for Outstanding Achievement in Music when she was 25 years. Kaushiki ji has been awarded the Sangeet Natak Academy's Ustad Bismillah Khan Puraskar, Aditya Birla Kalakiran Puraskar, and also received Shera Bengali Samman 2017 from ABP Ananda. Over to Kaushiki ji for an enchanting session with Pandit ji. Thank you. Thank you, Vandana ji, for that wonderful introduction. But after introducing Pandit ji, whatever you say about me, it is a huge embarrassment and awkwardness, and I'm worth nothing in front of him. And as you have introduced, it's like a conversation is like a jugalbandi. But in today's session, this conversation is not a jugalbandi, it is a talim, and this is between a guru, a god of music, and a devotee of music, a student of music who has learned music and much more from Panditji. And I've been extremely blessed to have his affection, his love, and his ashirwad on my entire family. And this includes, I mean, on behalf of Baba, Ma, everyone in the family, I first of all, पंडित जी आपको पहले तो मेरा बहुत 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 प्रणाम हम सबके तरफ से.
और आप तबीयत बहुत अच्छी रखिए, आप बहुत अच्छे रहिए, आप सलामत रहिए, आप स्वस्थ रहिए, ये प्रार्थना है पहले ही। और सबके तरफ से, प्रभा खैतान फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आपने स्वीकार किया है इस सेशन में आने के लिए। और मेरी कोई औकात ही नहीं है मैं आपसे बात करूं, लेकिन आपने फिर भी मुझे स्वीकार किया है कि मैं आपके साथ बात करूं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। नमस्कार, थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे तो आपने नर्वस कर दिया है बोल के कि मैं सच में बता रहा हूँ, आपने नर्वस कर दिया मेरी प्रशंसा करके, और क्या क्या कहा आपने मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सम्मान भी ज्यादा मेरे से मिला हुआ है आपको, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ। मुझे तो कुछ सम्मान नहीं मिला, लेकिन अभी बहुत मिलेगा आपको। अभी तो शुरुआत हुई है आपकी, इतना घर भर जाएगा खाली सम्मान से, सच बता रहा हूँ। मैं कभी कभी आपको कभी सुनता हूँ आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने पेट में ही रह के मम्मी के पास गाना शुरू कर दिया था, तभी से रियाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसे हुआ ये सब, कुछ समझ में नहीं आती। हमने देखा है कुछ लोग ऐसे बेचारे जीवन कट जाता है, लेकिन सुर समझ में नहीं आता उनके, और सुर समझ में आए तो उसको किस तरीके से खेलना है उसके साथ में, वो समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया। और आपने जो अपने एज के बारे में कहा, तो अभी भी मेरे आँख में आप बच्ची ही लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप इतना अच्छा गा लेती हैं और इस तरीके से लोगों को अपने हाथ में कर लेती हैं, जो भी संगीत के प्रेमी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में आपने क्या मेहनत किया होगा, कैसे आपको भगवान का आशीर्वाद मिला, कैसे आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कलाकारों के बच्चे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये प्रतिभा और ये क्या कहना चाहिए अंदर से भूख, ये थोड़ा कम दिखाई पड़ा। हम बनारस के पास ही इलाहाबाद में रहते थे, बनारस से लोग आते थे, उनके बच्चे सभी बच्चे गाना बजाना करते थे और अच्छा करते थे, चाहे वो कंठे महाराज जी हो, चाहे वो किशन महाराज जी हो, चाहे अनोखे लाल जी हो, चाहे बिरला खास हो। लेकिन वो बच्चे कहाँ गए कुछ पता ही नहीं लगता, शहर में दिखाई नहीं पड़ते। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग क्या भगवान से वहां से लेके आई हैं कि आप जिसको देख लेंगे वही आदमी बेहोश हो जाए, गा देंगी तो और भी बेहोश हो जाए, और सुनते सुनते आपको और किसी को नहीं सुनने की इच्छा करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कौशिकी जी, और मुझे आपसे बातचीत करके भी आपका स्वभाव सब, इतना आपका प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बता रहा हूँ। अब आप पूछिए जो पूछना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। जी मैं बहुत बचपन से बहुत ही बचपन से आपको देखती आ रही हूँ। ऐसे कई सारे फोटोज हैं जिसमें मैं इतनी छोटी हूँ मुझे याद भी नहीं है, लेकिन एसआरए में जब फेस्टिवल्स होते थे आप आते थे तब के जी फोटो। और लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको क्योंकि पूछने का मौका मिला है, ये सवाल सबसे ज्यादा मेरे हैं जो जी जी मुझे जानना है आपको। मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप अखाड़े में गए, पहलवानी की, आपने बचपन में ये सब किया, तो पहलवानी से बांसुरी तक ये जो जर्नी है ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? आपको खुद ही को ये चाह थी कि आप कि संगीत के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे, या फिर आपको कुछ सुन के कुछ जान के ऐसा इंस्पिरेशन हुआ? कैसे हुआ ये? बड़ा मुश्किल होता है इसके बारे में कुछ कहना। हर आदमी का सपना एक होता है और उसको संभालने वाले लोग एक होते हैं। वो कुछ और सोचते हैं, माता पिता कुछ और सोचते हैं, मोहल्ले वाले कुछ और सोचते हैं, और मैं कुछ और सोचता हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ अगर मुझे जो मैं सोचूं वो मिल जाए, लेकिन अगर मैं जो सोचूं वो न मिले तो मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। अब मुझे अखाड़े में जाना पड़ता था क्योंकि पिताजी को खुश करना था, जाता था और बड़े खुश होते थे। देखो हमारे बच्चों में कितना प्यार है, जिस चीज को मैंने धर्म माना है उस चीज को बच्चे फॉलो अप कर रहे हैं।
उनको बहुत खुशी होती थी, लेकिन मुझे जो तकलीफ होती थी उनको नहीं मालूम था, कभी उन्होंने ख्याल भी नहीं किया। तो मुझे तकलीफ होती थी, कोई मेरे ऊपर चढ़ के बैठा हो और मैं नीचे पड़ा हो, रो रहा हूँ, इसका कोई, तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं कब यहाँ से छूटूं, जाके गाना बजाना सुनूं और कुछ सीखूं और कुछ बजाऊं, कुछ ये करूं, तो मैं भाग निकलता था। और आज तक भी वैसे ही है। कभी मैं टेलीविजन में वो फाइटिंग वगैरह आता है ना, वो देख लेता हूँ तो पुरानी याद ताजा हो जाती है। लेकिन किससे लड़ूं, लड़ूं तो क्यों लड़ूं, क्यों, किस लिए? तो मैं आजकल बस अपना संगीत सुनता हूँ, आप लोगों को सुनता हूँ, तो थोड़ा ज्ञान मिलता है, उसको अभ्यास करता हूँ जी। और आपकी आपकी जो शुरुआत हुई सीखने की, वो कैसे हुई, किन से हुई? उसकी हाँ, शुरुआत मतलब बांसुरी ही क्यों? आप कुछ और भी बजाना चाहते थे या फिर आपको शुरू से बांसुरी में ही रुचि थी, वही आप बजाना चाहते थे? ये जरा लंबा चलेगा फिर, कोई मैं बात, अगर शुरू करूंगा तो। अच्छा चलिए। कोई बात। मैं, हाँ जी, मैं पिताजी को खुश करना चाहता था, इसलिए कि मेरी माँ मरे, मैं जब 5 साल का था तभी वो छोड़ के चली गई। तो मैं एक पहलवान पहलवान आदमी को खुश खुश करने के लिए उनकी विद्या को पहले उनके सामने में पेश करता था ताकि वो खुश रहे। और अगर जरा सा भी गड़बड़ हो जाए तो उनका एक हाथ मेरा पूरा गाल दोनों साइड का सूज जाता था। तो वो बहुत ही मतलब गुस्सा करते थे अगर उनकी इच्छा से काम ना हो तो मैं शुरुआत किया, लेकिन वो शुरुआत ऐसा किया कि उनको पता भी न लगे। उसके साउंड, बांसुरी का साउंड या मेरे आवाज का साउंड कुछ उनके कान में न जाए, कोई मोहल्ले में कह न सके कि मैं संगीत को भी देखता हूँ, अच्छा लगता है। और तो मैं अपने दोस्त एक थे मित्र, एक वैद्यराज के लड़के थे, वो तबला बजाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आगे डर लगता है, आप मेरे वहाँ चले आओ, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ी दूर 10 मिनट वॉक करके उनका घर था, मैं वहां जाकर उनके साथ में बैठता था। जब इच्छा हो जब बैठो, रात को 12 बजे तक बैठो, सुबह 6 बजे से बैठो। उनके पिताजी को संगीत से बहुत प्यार था, उनकी माता जी को बहुत संगीत से प्यार था। तो मेरे लिए तो अच्छा खाना भी मिल जाता था कि माँ जी छोड़ के चली गई तो घर में जो भी होता था खा लेता था। लेकिन ये सब आनंद मुझे मिलने लगा जब, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि मुझे एक कमरा मिल गया, मैं जहाँ प्रैक्टिस जब आऊँ कर सकता हूँ। और उनकी दुकान तो 24 घंटे खुली रहती थी, ग्राहक तो होते नहीं थे कोई। तब पहलवान लोग घूमते तो हमारे ग्राहक कैसे होंगे? तो कोई दवा ववा नहीं होती, हम लोग वहाँ बैठते थे और कितनी देर बैठते थे हमको भी नहीं मालूम, न किसी को मालूम। और सुनने वाले आते थे, बैठते थे, सुनते थे, जाते थे, लेकिन हमारा मुंह तबले वाले की तरफ रहता था कि वो क्या सोच रहा है, मैं क्या करूँगा, वो क्या करने वाला है, बस ये चलता रहता था। और ये रवैया कई सालों तक चला और पिताजी को नहीं मालूम। उनकी एक इच्छा थी कि अगर मैं कहीं नौकरी मिल जाए मुझे, और मैं मैट्रिक मेरा मैट्रिक पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर तुमको कहीं जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने कहा जॉब तो नहीं मिलेगा, मैट्रिकुलेशन के बाद कौन जॉब देगा वो। तो मैंने कई लोगों से बात किया, दोस्तों से, बोला मुश्किल है, या तो आप कोई टेक्निकल चीज सीख लें तो हो सकता है आपको कोई जॉब मिल जाए। और चूंकि आप बांसुरी बजाते भी हैं, हो सकता है उनके ऑफिस में किसी को म्यूजिक से थोड़ा सा अगर लगाव होगा तो आपको जरूर जॉब मिल जाएगा। तो मैंने ऐसा करते 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 एक कोई मिला, बोला आपको मैं जॉब दिलवाऊंगा, क्या बड़ी बात है, आप थोड़ा सा कुछ शॉर्ट हैंड या टाइप राइटिंग कुछ सीख लीजिए। तो मैं 2 महीने में दिन रात करके टाइप राइटिंग करने लगा और थोड़ा सा शॉर्ट हैंड भी करने लगा। तो मुझे बिलीव करिए, एक मिलिंग कंपनी है इलाहाबाद में, इलाहाबाद मिलिंग कंपनी, उनके बॉस ने मुझे जॉब दे दिया और मुझे 85 रुपीज मिलने लगा महीने का। मेरे पिताजी की इतनी खुशी कि मैंने आज तक उनको इतना खुश देखा नहीं। साइकिल में बैठ के लड्डू बांटने मोहल्ले में, मेरे लड़के को गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई। नहीं तो मैट्रिकुलेशन में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एनीवे, तो वो जब मिल गई तो हमारे पिताजी को खुश देखा, मैंने कहा चलो कुछ तो मैं कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ संगीत में। तो मैं थोड़ा सा रेडियो वगैरह में जाता था, चक्कर लगाता था, बच्चों के प्रोग्राम होते थे, तो मैं वहाँ थोड़ा सा, पंडित भोलानाथ जी थे जो कि हमारे गुरु जी थे,
और उन्होंने मुझे बहुत ही कुछ बातें बताई बांसुरी के बारे में और सिखाया। तो जब मैं वो सीख रहा था तो किसी ने देख लिया, प्रोड्यूसर ने कहा, अरे भाई आ जाओ बच्चों को प्रोग्राम में। तो बजाया तो वहाँ भी बहुत अच्छा। एक सुधाकर पाठक थे, पाठक के लड़के थे, उनका बहुत नाम था सिंगिंग में, बच्चों के प्रोग्राम में। और दूसरे एक थे प्रदीप कुमार चैटर्जी, वो भी बहुत अच्छा गाते थे। कभी कभी सुन के लोग कहते थे, अरे वाह वाह, ये तो बड़े, ऐसा आवाज लग रहा है जैसे उस्ताद आमिर खान साहब गा रहे हो। तो बड़ी तारीफ होती। और हम लोगों को खड़े नहीं होने देते थे, चल चल, अरे भाग जाओ, तुम लोग पहलवान के लड़के हो, क्या करोगे म्यूजिक। तो उनका इतना नाम था। तो मैंने कहा अच्छा। तो गुस्सा आता मुझे कि मुझे क्यों नहीं पहचान मिल रही। मैंने और ज्यादा रियाज व्याज करना शुरू किया। तो मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बच्चों के प्रोग्राम में ऑफर किया गया। तो मैंने पहली बार बजाया तो मैं तो बहुत नर्वस था, लेकिन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और कैसे वो सीधी बांसुरी होती है ना ऐसी, वो बजाया मैंने। अच्छा। लोग, हाँ जी, 15 मिनट बजाना था। तो मैंने कुछ राग क्या था, वृंदावनी सारंग क्या कुछ था, मैंने बजाया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा अब ये तो हमारा जीवन यहाँ से शुरू हुआ है, तो अब इसको अच्छी तरीके से मेहनत करके कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरीके से रखें। पहले पिताजी से छिपा के हो या उनको मालूम भी पड़ जाएगा तो अब नौकरी तो मिल ही गई है। अब इसके बाद बच्चों का एक ही आता है समय कि माता पिता सोचते हैं कि शादी कर दो। मैंने कहा इससे मैं दूर रहूँ। हाँ, नौकरी मिल गई तो शादी कर दो। एनीवे, मैंने कहा चलो इससे बचूंगा। तो मैं करते 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 थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कोई रेडियो ने कहा कि आपको मैं नौकरी दे सकता हूँ। वो मुझे पूछ रहे। मैंने कहा ये तो आप पूछ रहे, मैं पूछने वाला था। अगर मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा। इतने बड़े बड़े उस्ताद आते हैं। और सच में मानिए कि उस जमाने में सब बड़े बड़े उस्ताद आके अगर प्रोग्राम नहीं भी हो तो आके बैठे रहते थे, बीड़ी पीते थे और बातें करते थे और बैठ के चले जाते थे। जहाँ स्टाफ आर्टिस्ट बैठे थे तो वहाँ हम लोग बैठ के बातें करके चले जाते थे। तो मैंने कहा इन लोगों के साथ में बैठना, इनके दर्शन करना, इनसे बातें सुननी कितनी बड़ी बात होगी। तो मैं वहां से, मुझे कहा कि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, म्यूजिक के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन घर से दूर रहूंगा तो पिताजी की मार तो नहीं पड़ेगी। एनीवे, मैं मैं बहुत डरता था सच्ची। आज तक मैं भगवान से भी डर नहीं लगा, लेकिन अभी भी उनसे डर लगता है कि कहीं आ ना जाए। हाँ। तो मैं वहां से, आप बिलीव करेंगे कि मैं 2 दिन 2 रात ट्रेन में बैठ के भुवनेश्वर पहुंचा। लैंग्वेज अलग, खाना पीना अलग, और भाषा अलग, और रहन सहन अलग। लेकिन मैंने कहा सब कुछ सह लूंगा, लेकिन अब यहाँ खुल के और वो रियाज करूंगा और गाना बजाना करूंगा। एक होटल में रहा तो रात को बहुत मच्छर और वो क्या बोलते, खटमल, तो खाट में खटमल होते काटते हैं, वो लाइन से मेरे ऊपर से चले गए। मैंने कहा अरे वो, ये तो इनका रूम है, मुझे क्यों यहाँ रखा। तो मुझसे बहुत झगड़ा किया होटल के मालिक से। मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दिया, रात को सो नहीं पाया। तो मेरे एक स्टेशन डायरेक्टर थे पीवी कृष्णमूर्ति, बहुत नाम था उनका, और वो एक ही वॉज ए म्यूजिशियन हिमसेल्फ एंड कंपोजर ऑल्सो। तो उनसे मैंने कहा अरे वाह, ये तो मुझे बड़ा भाग्यशाली हूँ। उन्होंने वेलकम किया। मैं गया रेडियो में, मैंने बताया कहानी कि मैं रात को सो नहीं पाया। तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा मैं आपको रखूंगा। मैं, हालांकि ये लॉ में नहीं है कि किसी रेडियो में किसी आदमी को रखूँ एज ए गेस्ट, बट आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन सुबह 6 बजे ट्रांसमिशन के पहले आपको नहा धो के नाश्ता करके रेडी होके रहना पड़े। मैंने कहा जरूर करूँगा, सुबह 4 बजे कर लूँगा। तो लेकिन जगह मिली साफ सुथरी अच्छी, और मेरा बड़ा ख्याल रेडियो वालों ने कह दिया था वो आदमी से, देखो इनको कोई तकलीफ नहीं हो। और बहुत बड़े बड़े ग्रेट आदमी थे वो, स्टेशन डायरेक्टर। तो जब उनकी परमिशन मिल गई तो मेरा तो पूरा स्टूडियो, पूरा रेडियो का मालिक मैं हो गया। और मुझे लाइब्रेरी, मैंने कहा कि म्यूजिक सीखने के लिए कोई टीचर मिलेंगे यहाँ पर। बोले यहाँ टीचर नहीं है कोई, यहाँ गाने बजाने वाले मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। मतलब कुछ म्यूजिक का कोई चर्चा है।
नहीं था इतना, लेकिन डांस बहुत पॉपुलर था। हाँ, ओडिसी डांस ओडिसी, हाँ। बहुत ही, जी बहुत पॉपुलर था। मैं कह रहा हूँ 57-58 की बात। लेकिन डांस को लोग बहुत देखते थे और नाटक ड्रामा ये सब चलता था। मैंने कहा चलो ये भी झेल लेंगे, लेकिन हम अभी इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जीवन में। और तो मैं बजाता था, तो वहाँ कोई अच्छे म्यूजिशियन नहीं थे, तो लोग कुछ चाहते थे कि अच्छे म्यूजिशियन हो, तो लड़कियां जो डांस करती हैं ओडिसी डांस, उनको कोई अकम्पलीमेंट करे, उनको कोई म्यूजिक थोड़ा कंपोज करके दे दे। तो मैंने कहा अच्छा अवसर है, चलो बहुत बढ़िया बात है, हमको थोड़ा सा कंपोजिशन का भी आइडिया हो जाएगा और लाइट म्यूजिक में कैसे बजाते हैं, क्या करते हैं, वो भी एक आइडिया हो जाएगा, ये भी एक सीखना हो जाएगा। तो मैंने वो भी शुरू किया। तो मैंने कहा चलो ये सीखने के अलावा कुछ पॉकेट में भी पैसे आ जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे और बहुत बिजी में हो गया। और लड़कियां आती थी रेडियो में टिकट लेके पिक्चर का, और क्या क्या नहीं करती थी, और चलिए, और खाना लेके आती थी, सुबह नाश्ता बनवा के लेके आती है, डांसर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, और कुछ लड़कियां कुछ फोक गाती थी, वो रेडियो में आती थी, वो कि हमारे साथ आप बजाइए। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, लेकिन ये ऑफिसरों की आंख में ये बातें अच्छी नहीं लगी। ये कहाँ से आया है, बांसुरी बजा के लड़कियां पीछे पीछे घूम रही हैं, और ये तो देखो हम लोग यहाँ बैठे कोई देखता भी नहीं। इतनी जेलस हमारे जब देखते थे तो गुस्से में देखते थे। तो कई ऑफिसर से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने बहुत मेरे लिए कंप्लेन करके दिल्ली में हेड ऑफिस था, डायरेक्टर जनरल को मेरी मेरे बारे में बता के कि ये तो यहाँ काम नहीं करते, तो बाहर काम करते हैं और डांसर के साथ भी घूमते रहते हैं। एनीवे बदनाम किया। तो मुझे पीवी कृष्णमूर्ति ने बताया कि देखो आपको सब ऑफिसर ने ऐसे लिखा है, ड्यूटी ऑफिसर ने ऐसा कंप्लेन किया, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। करीब 50-60 उनके हाथ में पेपर पड़े हुए थे, उन्होंने चीर के फेंक दिया। बोला आप ऐसा करो, आप यहीं रहो, अगर आपको जाना है तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपको नहीं जाना तो आप यहीं रहो। जब भी आएगा कंप्लेन मैं इसको चीर के फाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन आप प्रोग्राम मत छोड़ना बाहर। और जब नहीं हो तो साइन कर देना पहले से अटेंडेंस बुक को। मैंने कहा देखो इसे कौन कौन कहेगा ऐसा, सही तो अपने बात। बच्चे को भी ऐसा नहीं कहेंगे। इतना बड़ा सहारा, इतना बड़ा आशीर्वाद, ये भगवान के सिवा तो कौन करेगा। एनीवे तो मैं ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये मैंने कहा था ना, मैं एक बार शुरू करूंगा नहीं तो नहीं, खत्म नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल लंबा नहीं पंडित जी। ये हम सबके लिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये तालीम है हम सबके लिए, क्योंकि हम जैसे बड़े हुए ना, और मुझसे भी जो छोटे हैं अभी संगीत के स्टूडेंट्स हैं, हमको इतनी सहूलियत मिलती है। पिताजी माँ सब मिलके गुरु के पास लेके जाते हैं, थोड़ा कुछ गा लिया, थोड़ा कुछ बजा लिया, इतनी तालियां मिल जाती हैं, इतने लोगों का प्रशंसा मिल जाता है। लेकिन फिर भी आगे जाके वो नहीं कर पाते हम जो अपने संगीत के लिए हमको करनी चाहिए। तो जब भी ऐसे हम सुनते हैं ना कि आपने इतनी तकलीफ उठाई है, इतनी कोशिश की है, इतने दूर गए, अपने घर से दूर गए, कहाँ से सीखेंगे, कहाँ बजाएंगे, कौन सुनेगा, किसी चीज की कोई सर्टेनिटी नहीं है, फिर भी आपने इतनी तकलीफ उठाई। ये हमारे लिए सीख है कि ये जो बना बनाया हमको मिल जाता है ना, इसको हम कई बार उसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से मिल जाती है और सारे आजू बाजू सब कोशिश करते हैं कि हमारे लिए और आसान कैसे बनाए। लेकिन जब तकलीफ उठानी पड़ती है, तब कईयों का ऐसा होता है कि वो तकलीफ उठानी पड़ेगी इसीलिए छूट जाती है संगीत। तो ये सही बहुत बात बड़ी है, सीख है हमारे लिए कि एकदम बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं भी चाहता था कि भगवान कृष्ण राग यमन बजाए या दरबारी बजाए, लेकिन देखिए मेहनत लगती है उसमें, उन्होंने भी नहीं किया। खाली वो ट्यून बजाते होंगे गोपियों के लिए, अपने लिए भी नहीं, और किसी गोपी को सिखाया भी नहीं इन्होंने किसी। तो मुझे कभी कभी लगता है, फील होता है कि जब भगवान लोग ऐसे थे तो हम लोग कैसे होने चाहिए थे। एनीवे चलिए तो मजाक की बात है। लेकिन हमको हमको बहुत कुछ सहना पड़ा चारों तरफ से। सह के मैं उस वातावरण में काम भी करता रहा, और क्योंकि गुरु नहीं था कोई सिखाने के लिए, चाहे वोकलिस्ट हो, चाहे बांसुरी वादक हो या सितार वादक,
कोई भी नहीं था। जो आते थे, अब निखिल बनर्जी आते थे और बेचारे 1-2 दिन रह के प्रोग्राम करके चले गए, या बुद्धदेव जी आते थे, वो 1-2 प्रोग्राम करके चले गए। तो मैं किनके साथ बैठूं, किनके साथ वो वार्तालाप करूं संगीत के बारे में? तो मुझे बहुत परेशानियां हुई। लेकिन मैंने एक हमारे दिमाग में बात आई कि जब मैं फ्री हूँ और स्टूडियो खाली है, जबकि कोई ट्रांसमिशन नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी जाकर किसी का रिकॉर्ड निकाल के सुन तो सकता हूँ। और वो मैं इतना भाग्यशाली था कि पीवी ने मुझे चाबी दे दिया कि जो तुम्हारी मर्जी हो जहाँ जाओ और निकाल के सुनो और सुन के रख देना उसी जगह पे। तो मुझे ये सुविधा बहुत मिली। तो मैं जब भी फ्री होता था और स्टूडियो बंद हो जाता था तो मैं जाके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोल के कि ये रिकॉर्डिंग मुझे सुनना है, तो बेचारे लगा दे। और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। मैं क्या बताऊँ। और उससे तो जहाँ जहाँ मैं गया, उसके बाद जब मैं बम्बई आया तो ऐसी जगह मुझे रहना पड़ा जहाँ फिल्म का ही क्राउड है, जहाँ के वो लोग फिल्म की डिमांड करते हैं। उस समय में श्री रामचंद्र, वसंत देसाई, मदन मोहन, रोशन, सब एक से एक उस्ताद लोग, हर जिसके पास जाओ जैसे उनका घराना है म्यूजिक। नौशाद साहब, हाँ हाँ। उनका घराना, मतलब कि अगर कोई वो भी नहीं है, उनका ऐसा लगता था कि ये उनका गाना कोई सुने भी तो जान लगे किसका कंपोजिशन, गलत नहीं कहेगा। सही बात। आज तो मालूम ही नहीं पड़ता कंपोजिशन किसने किया है, क्या किया है, लेकिन वो लोग अपने घराने के तरह रहते थे और करते थे। तो मैं इतना भाग्यशाली था कि जब मैं बम्बई पहुंचा तो इन लोगों के साथ में दर्शन हुए, इनके साथ में काम भी बहुत किया, बहुत ज्यादा किया। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी सुनता हूँ, मैं कहता हूँ देखो कैसे छोटी छोटी सी बात इधर से उधर होती है और उसी का पूरा चेहरा बदल देते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल देते हैं। कैसे ज्ञानी लोग थे, क्या सीखा था इन्होंने। आज के लोग खाली चिल्लाते रहते हैं, तो जितना ज्यादा चिल्लाएंगे वो गाने का उतना मजा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत मजा आती थी। और अभी भी मैं वही कर रहा हूँ जो उस समय में सोचता था, अभी भी वैसे ही सीखता हूँ जो नई बातें आती है। मैं तो आपसे थोड़ा एक सा आप चीज भी पूछना बोलिए। चाहती हूँ कि मैंने खुद ने देखा है और बाबा से भी मैंने सुनी है, कई मतलब शुभंकर काकू से सुना है, इतना सुना है कि आपके रियाज के बारे में, कि आप फ्लाइट में भी बैठते हैं, वहां पे भी थोड़ी देर के बाद रियाज करते हैं, आप होटल रूम में भी रहते हैं, आप कहीं जाके थोड़ी देर बैठे रहते हैं, आपकी बांसुरी हर वक्त आपके साथ होती है और आप रियाज करते रहते हैं, कभी धीरे भी बजाते हैं, आवाज भी उतनी नहीं आती, लेकिन आप रियाज करते रहते हैं। आप हम जैसे जो छोटे हैं, जो सीख रहे हैं और आपको पूछते हैं, आप थोड़ा हमको बताएंगे कि ये रियाज का जो आइडिया है, हम सब सोचते हैं कि तान करेंगे, स्पीड में तान होता है, सबको बहुत मजा आता है, लेकिन ये जो रियाज के साथ, संगीत के साथ ये जो बंधन है ना, ये जो लगावट है, ये जो मन की एक ये जो संबंध है, जो कुछ भी मतलब कुछ हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ उससे प्यार है, उससे प्रेम है, इसीलिए उसके साथ जो ये रिश्ता सा बन जाता है और वो हरदम हर हर वक्त वो अपनी हर सांस में वही रिश्ता हम कायम करने की कोशिश करते हैं। ये जो सोच है, ये अगर आप थोड़ा हम सबके साथ अगर थोड़ा शेयर करें। देखिए, किसी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर आप में वो शक्ति है कि आप खो के भी आप आंख खुला हुआ है और समझ रहे हैं सब, तो बहुत बड़ी भगवान का आशीर्वाद है। तो कुछ पाने के लिए अगर हमको कुछ खोना पड़ता है तो इसका मतलब है कि अगर हमारे बाजू का पैसेंजर बैठा है, वो पूछ रहा है, बातें करना चाहता है, लेकिन मैं फ्लूट में ही लगा हुआ हूँ, तो डर जाता है, घबरा जाता है कि ये पागल है या मैं पागल है ना। तो फिर मुझे उसको समझाना पड़ता है। तो बोलता है आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं फ्लूट बजा रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसे आपका बिजनेस क्या है? मैंने कहा मैं बिजनेस क्या होगा, मैं फ्लूट बजा रहा हूँ, यही है। फ्लूट बजाते खाना मिलता है? मैंने कहा, क्यों नहीं मिलता, जरूर मिलता है। हम सिखाएंगे किसी को तो महीने में कुछ मिल जाएगा, कहीं प्रोग्राम बजाएंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, वाह, तो इसमें पैसा है। मैं भी वैसे थोड़ा सा रिकॉर्ड बजा लेता हूँ, मेरे घर में ग्रामोफोन रिकॉर्ड है। मैंने कहा तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जरूर बजाएगा, हो सकता है एक दिन आपको भी भगवान कुछ दे दे बुद्धि और इसमें कुछ कर सके। एनीवे, उस म्यूजिक को उस हाल में देखा ही नहीं इन लोगों ने।
कि इंसान को पहचानने के लिए दुनिया के लोग आ जाते हैं एक जगह पर सुनने के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, कहीं के भी, तो सब आ जाते हैं सुनने के लिए और उसको आशीर्वाद करने के लिए और उसको प्यार देने के लिए। वो कहीं नहीं है जो हमारे भारत में है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे कलाकार हैं, आपके जैसे खूबसूरत भी, और शुद्ध स्वर लगाया तो और खूबसूरती बढ़ गई। तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है, भगवान ऐसा कैसे करता है। मैं भी चाहता था कि मैं बहुत खूबसूरत पैदा हो, लेकिन इस जन्म में नहीं हुआ, नहीं तो क्या मालूम। एनीवे, मगर हो सकता है कि अगर मेरे में भक्ति रही तो मैं अगले जन्म में भी थोड़ा सा पाऊंगा, उसके अगले जन्म में थोड़ा सा और पाऊंगा। तो मैंने कहा कि देखो, लोगों में इसके बारे में ये है, इसमें कोई पैसा नहीं, इसमें कोई नाम नहीं है, और ये ऐसा विद्या है कि इसको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा वाह भाई वाह, आप सुन रहे हैं कि मैं बजा रहा हूँ, आप मुझसे बातें करना चाह रहे हैं, आप बाजू वाले से क्यों नहीं बात करते? नहीं, आपका यही जानना चाहता था, आप बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरी नौकरी है, मुझे 300-400 रुपए मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने कहा विश्वास भी हो या ना हो, मुझे वो आनंद आ रहा है ना उसमें। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो मैं चला जाऊँ या आप चले जाए? नहीं नहीं, मजा आ रही है, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। मैंने कहा आप सोइए, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, ये बांस का टुकड़ा लेके क्या बेटा फू 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 कर रहा है। तो चलो, बहुत एक्सपीरियंस होता है इसमें। तो मुझे और गुस्सा भी आती थी कि ऐसे ऐसे लोग, इनको क्यों नहीं अक्ल भगवान ने दिया। ये कौन से कॉलेज में, कौन से क्लास पे गए कि जहाँ म्यूजिक को एकदम इतना बुरा समझाता जाता था कि हमको सीखने ही नहीं है। एनीवे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हमको जरूर और मेहनत करनी। जो बच्चे हैं पंडित जी, उनको आप अगर रियाज की अहमियत के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आजकल रियाज को के जो बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं कि बाहर जाए, बजाए, उनको नाम हो, पैसा हो, लोग पहचाने। लेकिन सीखने का, ये जो आप बोल रहे थे कि आप घंटों बैठे रहते थे, आपको पता भी नहीं चलता था कि आप कितने घंटे बैठे हैं, ये रियाज की जो अहमियत है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। उन सबको मालूम है। ये सारा डिपेंड करता है उनके माता पिता के ऊपर में कि कितना इनका 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 इन्वॉल्वमेंट कैसे हम कराएं। रिकॉर्ड बजाएं, कलाकारों को घर में बुलाएं, उनको बोले जरा इसके सामने थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, फिर वो साथ में बैठे। ये हमको करना पड़ता है ना। उसका शौक पैदा करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए सब कुछ नाटक करना पड़ता है। हो सकता है हमको कभी कभी बहुत खराब भी लगता हो, लेकिन हम जानबूझ के कहते भैया एक घंटा और गाइए, थोड़ा सा और गाइए, जरा सुनते रहे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को अच्छा लगता है कि हमारे मम्मी पापा देखो गाना सुनते। काश मैं इसके साथ तबला लेके बैठा होता तो मैं दिखाता था मैं क्या बजा सकता हूँ। एक जोश सा भी आता है, फिर रियाज करता है। मुझे लगता है कि रियाज करने के लिए ये जरूरी नहीं कि भगवान का आशीर्वाद हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उसका जो सराउंडिंग है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो उसमें थोड़ी सी ऐसी ताकत देगी कि वाह भैया आओ जाओ बैठ जाओ, जरा सुनाओ अजराना घराना क्या होता है, बहुत बातें सुनो। तो इस तरीके से उसको, उसका माइंड खुलता जाता है, वो कहता है कि नहीं और बजाऊंगा और बजाऊंगा। और आजकल के बच्चों का तो कमाल हो गया है। कहीं के भी बच्चे ले लिए, खासकर कलकत्ते में जाता तो घर घर में बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि जैसे कोई एक नया हॉस्पिटल खुला है, जिसका नाम है म्यूजिक का हॉस्पिटल, कि जब वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो। और क्या गाना बजाना करते, क्या सुर है भगवान ने उनको दिया। वो तो शुरू से ही ये परंपरा कलकत्ते में है। लेकिन आजकल के जो बच्चे तो और बाप रे। हम लोग पहले पहले सुनते थे करामतुल्लाह खां साहब आए, तालियां, ये वो, अगर तब देखो भगवान उनको जो ताकत नहीं दिया बच्चों को दे दिया। कैसे दिया, कहाँ से आया? तो एक वातावरण भी चाहिए ना उनको। वातावरण मिलने से उनको भगवान शक्ति भी देता है। ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के बच्चे सच्ची कमाल की बात है, और बहुत अच्छा अच्छा बजाते रहेंगे, चाहे वो भारत हो चाहे बाहर हो।
आदमी जब जाते हैं बच्चे बाहर बजाने के लिए तो लोग देखते रह जाते हैं कि मेहनत कब करता है, पढ़ाई कब करता है, खेलता कब है, तो सारी बातें सोचने लगते हैं इसके बारे में। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, उसके बाद एक सवाल भी किसी ने पूछा है, उन पे उनके साथ बात करेंगे। लेकिन उससे जी पहले मैं एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ कि ये जो गुरुकुल है बम्बई में है, भुवनेश्वर में है, ये आपको ये ऐसे करके ये गुरुकुल मैं गई हूँ, मैं भुवनेश्वर भी गई हूँ, बॉम्बे में भी गई हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ का जो वातावरण है ये कितनी खूबसूरत है और कितना सुरीला है। तो आपको आपको पहले से ये आपके मन में था कि आपको एकदम जो पहले जमाने में जैसे गुरुकुल होते थे, जैसे वहाँ पे वो खाना भी खुद बनाते थे, सफाई उसको मेंटेन करना वो भी खुद करते थे, ऐसे ही आपको गुरुकुल आपको प्रतिष्ठा करना है, ऐसा आपको मन में पहले से था? पहले से तो नहीं था। जब से मेरी गुरु माँ मेरे सर के ऊपर उन्होंने हाथ हाथ रखा तो मैंने देखा वो गुरुकुल की बात करने लगी, मैहर की बात करने लगी और ऐसी ऐसी बातें करने लगी जहाँ के उस्ताद अली अकबर खां का, पंडित रविशंकर जी जहाँ रहते थे, पंडित निखिल बनर्जी, ऐसे बड़े बड़े महान लोग, महान कलाकार वहाँ रह के, वहाँ खाना पीना खा के और वहाँ पर हमारे बाबा के पास में बैठ के कितनी विद्या दी और कैसा दुनिया में नाम किया है। आज तक किसी कलाकार ने ऐसा नाम नहीं किया जो इन लोगों ने कर लिया। और तो मुझे लगा कि गुरुकुल की परंपरा ही ऐसी है कि सुबह उठो तो ये करना है, दोपहर को ये करना है, कभी खाना भी बनाना है, कभी घर भी पहुंचना है, तो रियाज, मगर इस समय में रियाज करना है, इस समय में गुरु के पास बैठना। तो ये अगर ये चीजें बन जाए तो थोड़ा सा आदमी को बहुत असर करती है उसकी बातें। क्या तो दूसरे भी बता रहे हैं, रियाज कर रहे हैं दूसरे रूम में, उनको सुन के भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, नई नई बात सुनने को मिलती है। फिर गुरु की देखभाल कमाल है वो तो, कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने इसमें गंधार ज्यादा लगा दिया, इसमें गंधार तो बहुत कम लगता है। अब वो सुनता रहता है, घूमता रहता है। मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन हमारे बच्चे सब अच्छे रियाज करके सभी अच्छा बजा रहे हैं और सभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो आनंद मुझे मिलता है कहाँ से मिलेगा, कौन देगा ये आनंद? तो अब लोग पूछते हैं गवर्नमेंट को, कभी कुछ चाहता हूँ मैं मांगने के लिए तो गवर्नमेंट पूछती है कि आपको कैसे मैनेज करते हैं। अरे मैंने कहा मैं थोड़ी मैनेज करता हूँ, मैनेज तो भगवान करता है, आप कैसे मैनेज अपने आप को करते हैं? ऐसे ही हर इंसान को उसके काम को तो भगवान मैनेज करते हैं, वो देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप उसमें समय बिता रहे हैं, ठीक सही तरीके से बिता रहे हैं या नहीं। तो भगवान जब रहता है तभी आपका नाम होता है, तभी आप लोगों की आंख में बस जाते हैं और दुनिया आपको प्यार करने लगती है। जैसे आजकल कौशिक जी को दुनिया प्यार कर रही है, इस तरीके से भगवान करे हर बच्चों को प्यार करे। एक अमित जी है, अमित चक्रवर्ती जी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम उनको जरूर। थोड़ा सा क्वेश्चन में लेते हैं, वो आपको पूछेंगे। जी जरूर जरूर। हाँ अमित बाबू बोलो। Amit ji, can you unmute yourself, please? अच्छा আমি দেখতে পাচ্ছি না ওনাকে। उनकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। अच्छा गाते हैं वो? हाँ, नहीं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते थे, उन्होंने कहा था, लेकिन जी अभी मैं आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जब तक कोई हम बात लेते हैं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो जी बांसुरी जी जी। आप जब गुरु माँ के पास गए सीखने के लिए, तो आपको जो बांसुरी ये उल्टा पकड़ना, ये उन्होंने आपको कहा था, आपने डिसाइड किया था, आपको डर नहीं लगा था? तब तक तो आप पूरी तरह से बजा रहे थे और आपको डर नहीं लगा बांसुरी उल्टा पकड़ के एकदम नए सिरे से उसको शुरू करने में? उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए मुझसे कि मुझे लगा कि अगर मैं नहीं कर सकूंगा तो इनके यहाँ और दूसरा मौका नहीं मिलेगा इनको, इनके दर्शन का। तो मैंने कहा ये जो बोलेंगी वो मुझे करना ही है। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुमको नए तरीके से सिखाएंगे, मतलब अलंकार सारे गामा से शुरू करेंगे
और उसके बाद जो मैं कहूँगा वो सुनना पड़ेगा। पुरानी बातों को भूल जाएंगे, पुराने रिलेशन को भूल जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही। ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे आप बता सकते हैं, मुझे एहसास करवा सकते हैं कि हाँ आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं। तो मैंने कहा जरूर, आप क्या चाहती हैं। तो मैं थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बजाता भी था जब मैं बम्बई पहुंचा था। हाँ तो हाँ कुछ आदत भी थी छेड़खानी करने की, स्वरों से ये वो मजाक उड़ाना। ये मैंने कहा आप जो कहेंगे वो करूँगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ सरगम से। मैंने कहा मैं क्या करूँ, उल्टा बजाऊँ? बोले ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुमको मुझे कन्विंस करना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने शुरू किया तो उनके आंख में आंसू आ गए। बोले कि ये तो हम आज तक किसी को देखा नहीं कि ऐसा कर। मैंने कहा बाबा तो सब उल्टा वाद्य बजाते हैं, वायलिन बजाते हो भी उल्टा, सरोद बजाते हो भी उल्टा, जो भी वाद्य बजाते थे उल्टा। मैं एक बांसुरी को नहीं हैंडल कर सकता, मैं जरूर करूँगा आप जो चाहेंगे। उनके आंख में आंसू आ गए। बोले हाँ मुझे अभी एहसास हो रहा है कि तुम जो बोलोगे करोगे। बस यही बात थी। ये आप जैसे बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर एक स्टूडेंट म्यूजिक का ये वो जिंदगी भर सीखने वाली चीज है कि कोई गुरु के लिए और गुरु के पास सीखने के लिए कोई इंसान किस हद तक उसकी अपनी जो भक्ति है उसको गुरु तक पहुंचाने के लिए कि इतनी बड़ी एक डिसीजन वो ले सकते हैं। ये हम हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। आप जैसे बोल रहे हैं वो बहुत आसानी से हो जाता है, ऐसे आपने उसको कहा, लेकिन ये कितनी गहरी चीज है और कितनी डिफिकल्ट चीज है। ये जो करने की कोशिश करेंगे उसको पता चलेगा कि ये कितनी गहरी चीज है। आप इतनी कम उम्र में इतना सोचती हैं, इतना समझती हैं, इतना ख्याल रखती हैं, इतना अप्रिशिएट करती हैं हमारी बातों को। ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। मैं तो अभी भी आपको बच्ची ही समझता हूँ। क्या बताऊँ, यह तो मेरी गलती है। मैं जिंदगी भर आपके सामने इतनी बच्ची रहूंगी। उम्र तो कोई चीज ही नहीं है। उम्र में तो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन संगीत में आप भगवान है हमारे। और आपके अरे सामने नहीं हमारी नहीं, उतनी थैंक यू औकात थैंक है यू। जितनी एक वो भक्त का होता है। वो फैन वैन वो तो बहुत नहीं छोटी नहीं, सी चीज है, लेकिन हमने ये सुर जी और जी जी। साज है ना, ये प्रोग्राम का नाम। सुर और साज ये दोनों चीज मिलके अगर एक इंसान बन जाते तो वो आप बनते हैं। इसीलिए अरे नहीं नहीं, थैंक यू, बहुत आपके बहुत सामने बहुत। हमारी कोई बात करने की औकात नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है कि एक एक चीज जो आप बता रहे हैं वो अगर थोड़ा सा भी हम अपने जीवन में कोशिश कर सके तो संगीत का पता नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छे इंसान बनेंगे इतना कोशिश करके। वो तो आप बन गई पहले से। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके आप पहले से ही बन गई। उसके बाद गाना आया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी। आप बस आशीर्वाद कीजिएगा हमको। एक प्राणित बब्बर जी हैं, जी वो थैंक यू आपको कहेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि हम कई बार होता है जो शास्त्रीय संगीत की चर्चा करते हैं, सीखते हैं, या फिर गुरु भी कभी कभी शिष्यों को बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा लाइट म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए या फिर गाना चाहिए, और उसको जितना शुद्ध तरीके से शास्त्रीय संगीत का आप चर्चा करेंगे उतना ही होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। लेकिन आपके संगीत को जैसे हमने देखा है, अगर गलती हो माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन आपने जब जो बजाया, आपने कंपोज किया, जब क्लासिकल बजाए तो वो भी इतनी उसमें शुद्धता, उसमें इतनी म्यूजिकलिटी। लेकिन जब आपने हिंदी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज की, जब उन मूवीज के लिए आप बजाए, जब कहीं भी किसी भी चीज में इलियाराजा जी के साथ वो जो पीस है, वो मुझे पता है, मैंने आपको पूछा था कभी, आपने कहा था वो पूरा पीस आपने एक ही बार में बजाया। वो जी जिसने सुना है वो पीस, वो किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि वो पीस कोई एक बार में सुन के एक बार में बजा दे। लेकिन ये आपके विचार में क्या आपको लगता है कि किसी को अगर शास्त्रीय संगीत की सीख है, उसकी तालीम है, वही करनी चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए, या फिर सब कुछ करनी चाहिए और सब कुछ कैसे अच्छी तरह से वो करे उस पर ध्यान देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि
जब आदमी को किसी चीज से प्यार होता है ना, तो हर चीज सामने आती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इलियाराजा कौन है, उनसे मिलूंगा, लेकिन इतना गुणी आदमी, इतना अच्छा आदमी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके पीस के ऊपर मैं बजाऊंगा, लोग सुनेंगे, लोग अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब ऐसे हालात में पहुंच जाता हूँ कि मुझे किसी के साथ में काम करना है, तो सुबह भगवान से, मेरे गुरु से, मेरे माता पिता का आशीर्वाद लेके निकल जाता हूँ, और फिर जो वो कहते हैं उसको किस तरीके से सजाना है, किस तरीके से उसको बढ़ाना है, कि जो दूसरे म्यूजिक हमारे आगे पीछे हैं वो भी रहे, लेकिन उससे थोड़ा सा उठा हुआ रहे, तो लोगों की नजर में आए, कान में अच्छा लगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस काम के लिए हमने कहीं सीखा नहीं है, लेकिन शुरू से अच्छा लगता है। शुरू से अच्छे गाने जो हिंदी फिल्म के थे वो अच्छे लगते थे। जो ये कहता है कि शुद्धता, किस चीज में शुद्धता है? आप किस चीज को शुद्ध मानते हैं? जो आपके दिल में आता है, जो आपको आनंद देता है, वही शुद्ध है। माता पिता बहुत से पढ़े, लेकिन आप सोचते हैं मेरे माता पिता सबसे बड़े, उनसे बड़ा और कोई है नहीं। मैं कहूँगा मेरे माता पिता भी ऐसे, लेकिन आपको क्या उनसे आनंद मिलता है, हमको वो सीखना, हमको वो देखना है। तो जो ये कहना कि मैं शास्त्रीय संगीत जो ध्रुपद है उसके आगे कुछ भी नहीं, मैं तो ये उल्टा कहता हूँ, जिसको लाइट म्यूजिक का थोड़ा सा आइडिया नहीं, उसका संगीत कुछ भी नहीं। अगर लाइट म्यूजिक है ना, अगर लाइट म्यूजिक नहीं है तो उसमें जान नहीं। सही बात है, बहुत सही बात है ना। और अगर वो नहीं सीखा, वो दिल में नहीं आया, तो ये भी नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसमें कोई जान नहीं रहेगी, है ना। तो आज देखिए गायिकाओं में ऐसे ऐसे गायिका लोग हैं, ऐसे ऐसे गायक लोग हैं कि जिन्होंने कभी सीखा भी नहीं और कभी गाया भी नहीं, लेकिन उन्हें जो अपना काम किया, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, चाहे फिल्म म्यूजिक हो, चाहे वहां पर अभी तक वो टॉप बने, उनके आमने सामने कोई नहीं दिखाई पड़ता। अब उन्होंने अगर क्लासिकल नहीं गाया तो ऐसा नहीं कि वो नहीं गा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा काम ही है, लेकिन गा सकते हैं, क्यों नहीं गा सकते? आज लोग गा ही रहे हैं। आज देखिए चाहे हमारे शंकर महादेवन हो या कुछ भी गा लेते हैं, और लोग सुनते भी हैं उनको और सराहते भी हैं उनको, अच्छा गाते हैं, ये क्यों नहीं सुनना चाहिए? तो मुझे लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये ठीक है, ये तो है बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन इसके आगे क्या है? इतना बड़ा आकाश है, कहीं नीला है, कहीं थोड़ा सा सफेद दिखाई पड़ रहा है, तो इसका आकाश का देखने का मजा है। अगर आपको एक ही कलर दिखाई पड़ेगा तो आप उससे सीखी क्या? कोई एक ही कलर देखा आपने, उसी को याद रहेगा कि एक ही कलर मैंने देखा। अगर थोड़ा सा गाते गाते आप भैरवी में थोड़ा सा अगर थोड़ा सा चुलबुली बातें ना हो, भैरवी तो कभी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? बहुत ही सही। तो मैं क्या कहता हूँ, हर चीज का आनंद लेना चाहिए, हर चीज को सीखना चाहिए। क्या हमको यूज करना है, कितना हमको यूज करना है, कितना हमको नहीं यूज करना है, तो हमारे ऊपर भगवान छोड़ के, और भगवान कहते हैं अब ये आपके हाथ में दे दिया, ये आप ले लो, ये चाबी ले लो, आप संभालो। तो आपकी सोच और बढ़ती है। और मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ शायद। नहीं ठीक है, ठीक है पंडित। हमको क्या पहले शुरुआत करते सा से गा पर जाना बेटा, सा गा। मैंने कहा मैं 50 बार करूंगा, लेकिन कुछ इसमें कोई ऐसी बात है वो दिल में लग जाए, उनके समझ में नहीं आते। मेरे गुरुजी ने तो ऐसा ही सिखाया। It was an honor and a privilege for us all to have seen this enchanting conversation. On behalf of the Prabha Khaitan Foundation, I would like to thank you and Kaushiki Chakraborty for agreeing to be a part of our session, and especially for sharing their time, their precious time, to be with us today. We would also like to extend our thanks to the Eastern Zonal Cultural Center, Ministry of Culture, SAS Women of India, SWAR, and all our guests who attended, never-ending support. Thank you so much.